Good evening, my dear friends. Again, this is Purti Chaturvedi welcomes you to Chaturvedi study classes. Today we are late, but no worry. Point is that we are here to learn something new. So we will start our day or our class with a very beautiful thought of the day, that is learn new something every day. What does it mean? Learn new something every day. यानी कि हर दिन हम कुछ नया सीखें. So let's do this. But before coming to the topic, I would like to thank to all of you for helping me, for supporting me, that you are giving me views, your subscriptions, and you are liking my videos. If you like my video and if you are viewing it first time, so please subscribe my channel, like my video if you like this, and share it also so that your friends could also be benefited by that. Okay, so firstly we will take the recap of the previous day. Previous day we have discussed about, we have taken the topic of parts of speech. In that topic there were 8 types, and first type we have discussed already, noun. Second type was pronoun, and we were discussing about kinds of pronoun. So our topic was pronoun, kinds of pronoun. We have discussed already about pronoun, what is pronoun, words that are used in place of noun that are called pronoun, and we have already discussed the 4 kinds of pronoun that were, first was personal pronoun, second interrogative pronoun, third one relative pronoun, and fourth was demonstrative. Now we will discuss our 5th kind, that is indefinite pronoun. What is indefinite pronoun? It indicates, देखिए इस वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है, indefinite. What is the meaning of the word definite? Definite का मीन्स क्या होता है, certain, and indefinite means uncertain, यानी जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं. What is that? Indefinite, nothing. It means it indicates to uncertain or unknown noun. Okay, it indicates to uncertain or unknown noun, यानी कि ऐसा नाउन जिसके बारे में हम जानते ही नहीं हो. जैसे कि कभी कभी आपके साथ होता है ना कि कहीं घर पे अचानक कोई आ गया, अरे हम तो घबरा गए, कौन आया, कोई, who was he, somebody, we don't know who was he, somebody, someone, anyone, etc. जिन वर्ड से हमें ये पता ही ना चले कि किसके बारे में बात हो रही है, हु इज ही, वो सारे हमारे किस में आते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन में. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नेक्स्ट टाइप विल बी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. Next is distributive. 6th type is distributive. डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड को अगर थोड़ा सा तोड़ के देखें तो हमें क्या पता चलेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव से हमें पता चलेगा जब हम किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि बांटते हैं, यानी कि इट मींस इट इज यूज्ड टू
used to point out something individually or from a group of separate। यानी कि जब हम किसी भी ग्रुप से किसी एक की बात करें, किसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, यानी कि पूरा एक ग्रुप है उसमें से हर एक को बोले ईच ऑफ देम, आइदर, नाइदर, मतलब अगर दोनों के ग्रुप में से आइदर है, नाइदर है, ईच ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, these type of pronoun are used for the distributive pronoun. For example, either, neither, each, every, etc. These all are examples of distributive pronoun. Okay. Next type is seventh. Seventh is reflexive pronoun. Reflexive pronoun. Reflexive, रिफ्लेक्ट करना। अब साइंस में मत पहुंच जाना कि रिफ्लेक्शन पढ़ रहा है, वापस आ जाओ यहाँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इट मीन्स विच रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट, यानी कि जहां पर प्रोनाउन का जो इंपैक्ट है, उसका जो रिफ्लेक्शन है, वो सीधे किस पर पड़ेगा? सब्जेक्ट पर पड़ेगा। मीन्स विच रिफ्लेक्ट्स बहुत सारे लोग तो पहुंच गए होंगे रिफ्लेक्शन लेने, है ना? पहुंच गए थे ना? वापस आ जाओ जल्दी। हम वो वाले रिफ्लेक्शन पे नहीं जा रहे हैं, प्रोनाउन में इंग्लिश में वापस आओ। विच रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट। ओके, कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? अब ये देखिए, आई कट माई सेल्फ, आई कट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही काट लिया। यानी कि ये जो माई सेल्फ वर्ड है किस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है? आई पर ही तो रिफ्लेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, दे ब्लेम्ड themselves, उन्होंने किसको ब्लेम किया? खुद को ही तो ब्लेम कर दिया। तो इसका रिफ्लेक्शन किस पे पड़ रहा है? सब्जेक्ट पर। अब अगला जो टाइप आएगा ना, वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि रिफ्लेक्सिव है या दूसरा कौन सा होता है? एम्फेटिक। हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, कैसे पता करें कि रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक। इसीलिए मैंने इसको रफ नहीं किया है, ताकि आप इसके जो डिफरेंस है उसको समझ पाए। एम्फेटिक, एम्फेटिक में एम्फेटिक का मीन्स का मतलब समझते हैं आप? एम्फेटिक मीन्स किसी भी एम्फेसाइज करना, यानी किसी चीज पर जोर डालना, स्ट्रेस डालना। इट मीन्स स्ट्रेस। जिस आप अपने दिमाग पे स्ट्रेस देते हो ना, कुछ भूल जाते हो तो क्या करते हो? स्ट्रेस ही तो लेते हो, और यही बीमारी की जड़ होती है। तो स्ट्रेस को छोड़ो, वापस आओ, देखो एम्फेटिक कैसे? विच impacts more stress on the subject, यानी कि जो सब्जेक्ट पर क्या डालेगा? स्ट्रेस डालेगा, उसको टेंशन दे देगा। कैसे? one minute, I myself prepared my breakfast। बेचारे खुद को ही देखो ब्रेकफास्ट बनाना पड़ गया ना। आई माई सेल्फ प्रिपेयर्ड माई ब्रेकफास्ट, मैंने खुद अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया है। देखिए इसमें एम्फेसिस आ रहा है या नहीं कि मैंने खुद प्रिपेयर किया है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ही हिमसेल्फ ड्रोव द कार, उसने खुद ही कार ड्राइव की, कोई ड्राइवर ही नहीं मिला, बताओ उसे। ही हिमसेल्फ ड्रोव द कार। अब देखिए डिफरेंस हम कैसे करेंगे
कि दोनों में ही हमारे पॉजिटिव्स आ रहे हैं, दोनों में आ रहे हैं ना। कैसे हम ये डिफरेंस करेंगे कि ये हमारा एम्फेटिक है या रिफ्लेक्सिव? तो इसमें देखिए कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस सिर्फ एम्फेटिक को लेना, हमें लेना ही नहीं है। हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ ये देखना है, इसमें देखिए जो पूरा स्ट्रेस, पूरा जो वर्क का रिफ्लेक्शन है वो किस पर है, सब्जेक्ट पर है, लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। आई कट माई सेल्फ, कटी तो किया अपने आप को, और तो कुछ नहीं किया, कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं मिला। लेकिन इसमें देखिए आई माई सेल्फ प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट, मैंने खुद क्या प्रिपेयर किया है, अपना ब्रेकफास्ट। यानी जहां पर हमें हमारा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा साथ में, ये मिल जाएगा कि किस चीज पर वर्किंग हो रही है, जो सब्जेक्ट पर जो स्ट्रेस पड़ रहा है वो किस चीज के लिए पड़ रहा है, तो वो एम्फेटिक होगा, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव में आएगा। दूसरी पहचान बच्चे बहुत जल्दी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो आएगा वो एम्फेटिक हो जाएगा और लास्ट में आएगा वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो वो थोड़े छोटे लेवल पे ही करते हैं, लेकिन आप ब्रॉड लेवल पे हो तो थोड़ा अच्छे से समझो कि जब हमारे इसका स्ट्रेस ज्यादा होगा, आई माई सेल्फ, मैंने खुद प्रिपेयर किया अपना ब्रेकफास्ट, तब होगा हमारा इम्पेरेटिव। और आई कट माई सेल्फ, कोई ऑब्जेक्ट नहीं कि मैंने कट किया, तो कट ही तो किया, दे ब्लेम देमसेल्फ, उन्होंने ब्लेम ही तो किया, तो वो हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव। आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस अब क्लियर हो गया होगा और आगे अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, और कंफ्यूजन अगर अभी भी बचा है तो कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें कमेंट कीजिए और पूछिए। अब हमारा लास्ट टाइप बचता है, दैट इज 9th टाइप। क्या है वो, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मैथ्स में भी आते हैं ना, रेसिप्रोकल है ना। क्या होता है रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल शायद लिखने के लिए आते हैं, अपोजिट्स होते हैं। कहते हैं कि इसका रेसिप्रोकल क्या है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, ऐसा ही है। कई लो इंग्लिश में भी आ गए अब तो रेसिप्रोकल, प्लस माइनस वाले। अब कैसे होगा, अब क्या प्लस माइनस इंग्लिश में लगाने पड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अब देखते हैं क्या करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल यानी कि ये क्या करेंगे, रेसिप्रोकल जैसे अपोजिट्स होते हैं ना, तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे पर अपना रिफ्लेक्शन डालेंगे। These pronouns, मैं आपको डेफिनेशंस लर्न नहीं करा रही हूं क्योंकि आपको सीटेट में, टेट में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेशन नहीं लिखनी है, सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करना है। तो बस समझिए, these pronouns reflect upon each other और वन अदर, यानी कि एक दूसरे पर ही रिफ्लेक्ट करेंगे, रिलेटेड होंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ईच अदर, वन अनदर। अब ये दो वर्ड आते हैं, एक ईच अदर, एक वन अनदर, मीन्स तो दोनों का ही सेम है, एक दूसरे पर, है ना, एक दूसरे से। पर डिफरेंस क्या है, इसमें एक डिफरेंस है। ईच अदर जो वर्ड है वो 2 पर्सन्स के लिए होता है, जैसे दे लव ईच अदर, तो वो 2 लोगों की बात हो रही है कि वो एक दूसरे से लव करते हैं, प्यार करते हैं, दे लव ईच अदर। लेकिन जब हम वन अनदर की बात करते हैं तो वन अनदर हो जाता है मोर देन 2 पीपल के लिए। जब 2 से ज्यादा की बात करें, जैसे आप सारे स्टूडेंट्स है ना, एक दूसरे से को लाइक करते हो, कुछ भी करते हो, तो क्या यूज करेंगे, वन अनदर। दे लव, पूरे फैमिली मेंबर्स हैं, वो सब एक दूसरे से लव करते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दे लव वन अनदर। ओके, तो हमने जो हमारे 9 काइंड्स थे वो कवर कर लिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ रह गया है ना। क्या रह गया है कि आपको याद दिलाना, क्या कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन का बटन ऑन करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने जो भी आपके प्यारे प्यारे फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करना है, ताकि वो भी आपकी तरह ये सब सीख सके। आपको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं, पर आप लोग कमेंट्स नहीं देते, कोई भी कमेंट्स ही नहीं आता। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रही है तो प्लीज मुझे कमेंट्स तो दीजिए, जिससे मुझे भी पता चले कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। So please subscribe my channel if you are seeing it first time. Push out the notification button and like my video. Thank you and have a wonderful day.